नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों के बयान लगातार आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दरअसल पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का माहौल सिर्फ भारत में ही नहीं बना हुआ है, बल्कि पीओके के लोग खुद भी भारत के साथ आना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान सरकार की नाकामियों, क्षेत्र के साथ किए जा रहे भेदभाव और चीन की दादागिरी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के कई नागरिक और सामाजिक संगठन तो भारत से हस्तक्षेप करने की मांग भी कर रहे हैं। समय समय पर वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर दिखाकर अपना समर्थन भी जताया जाता है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बयानों पर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कई बड़े वादे पूरे कर चुकी मोदी सरकार आने वाले समय में पीओके को वापस लाकर भारतवासियों का एक बड़ा सपना भी पूरा कर सकती है। पीओके के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयानों की बात करें तो आपको बता दें कि हालिया बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। उन्होंने कहा है कि पहले लगता था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना मुश्किल है, लेकिन आज देखिए 370 भी हट गया है और जम्मू कश्मीर आगे भी बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कहा है कि पहले इस पर बात नहीं होती थी, अब हमने सख्त रुख अपनाना शुरू किया है। हमने चीनी कॉरिडोर के खिलाफ आपत्ति जताई है। बहुत कुछ हो रहा है और धीरे धीरे सब कुछ होगा। उन्होंने पीओके के मसले पर यह भी कहा कि तथ्य यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छोड़कर हमने दो विरोधी देशों को करीब आने का मौका दे दिया और आज हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलकाता में नया भारत और विश्व विषय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद व्याख्यान देने के बाद यह बात कही। Since we are in the land of Dr. Shama Prasad Mukherjee, the first thing to appreciate and to consistently get into the minds of the entire nation is the fact that we have actually rectified a fundamental mistake which was made in 1947. And a mistake for which Dr. Shama Prasad Mukherjee fought so hard in his own lifetime to rectify. Now, to me, if you do not do that, see, I've tried to, all of us know the domestic debates on this. The point I was making is, if you leave open such a vulnerability, in a competing world, others are going to exploit it. And that is exactly the account which I read out to you. And the fact is that by leaving there a Pakistan-occupied Kashmir, we allowed a contiguity to develop between really two adversarial nations. And that is today costing us as well. So now what happens beyond obviously is not something that anybody can say with great authority and certainly not in public. But I do think that even in terms of making clear you begin first by at least opposing something, whether you then you act on it, that comes later. When we took a strong position against the Belt and Road Initiative, against the China-Pakistan Economic Corridor, I can tell you there were sections in this country who questioned us, and many of them questioned us publicly. Today they may want to deny but the record is there for everybody to see that who was clear-cut about what were our rights and what were our interests, and who was once again dodgy as they have been for the last 75 years. What you said, soft power, how do we deal with it? I was reminded of something with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu actually said at the Raisina dialogue. I can't give you his exact words, but in effect it was that soft power is no use without hard power. Okay. So the bottom line really is that we have to develop that deep strengths. We have to develop those industrial capacities. We have to develop the technologies in order for us to it's not a question of competing with a neighbor or dealing with a threat. We need it for ourselves. India will not rise if India does not have the technology, the manufacturing, the economy, the infrastructure for that rise.
So it's a self-propelled requirement that we need to have, and that is exactly, if you actually are to connect the dots, when Prime Minister speaks of a Atmanirbhar Bharat, when he speaks of an Amrit Kal, when he says that Bharat will be Viksit by 2047, these are all dots that he is connecting in his vision. हम आपको यह भी याद दिला दें कि अभी पिछले सप्ताह ही जम्मू दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारत ताकतवर बनता जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वह सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जा सकता है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहाँ तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। साथियों, जब से हमारा यह भारत आज़ाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही नहीं, दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कंगाल पाकिस्तान के साथ अब पीओके नहीं रहना चाहता। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य
7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए, ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।